Dhritarashtra hope that if these people go there, they will change their mind. It's such a holy place. Dharmakshetra. That's why it's called Dharmakshetre Kurukshetre. And that effect was there on Arjuna. He prepared for the war completely and went there. After going there, he changed his mind. He says, I don't want to fight. What Dhritarashtra expected that Duryodhana will change his mind. But Duryodhana is such a cutter, horrible character. He will not change his mind. But Arjuna changed his mind. But everybody is not changing their mind. Only Arjuna is changing his mind. Everybody is wanting to fight war. There are lakhs of people there. So Arjuna wanted to just go back. He doesn't want to fight. Why should I fight and kill my own relatives, my own teacher, my own grandfather, my own cousin brothers, etc., etc. So the first chapter is that. So Lord Krishna in the rest of the 17 chapters, he explains why he should fight the war. And please note that at the end in the 18th chapter, he says, you decide whatever you want to do. Krishna never says fight a war compulsory. He gave all the knowledge, divine knowledge, information, guidance, advice, counseling. Finally he says, ye yo yadichhasi tat kuru, you do whatever you want. Ab jo marzi mein aaye wo kar. Lastly Arjuna says, nashto moha smritir labdva karishye vachanam tava. मेरा जो मोह था वो खत्म हो गया, मैं जो आप बोलेंगे वो मैं वही करूँगा. तो लास्ट में बोलेगा 18 चैप्टर्स के बाद. अब ये पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ पे उतना टाइम था कि 18 चैप्टर्स का लेक्चर दे सकते हैं. तो ये व्यास जी ने रिकॉर्ड किया है, जो कुछ भी उनके बीच में हुआ है उसका जो इन्होंने पोएट्री में दिया है. ऐसा नहीं कि वो सेम पोएट्री कृष्णा चैंटेड देयर. Supposing Krishna comes to this meeting and ask him to give a lecture, will he repeat Bhagavad Gita? He will not repeat Bhagavad Gita. He will talk what is appropriate for the occasion. So he talked to Arjuna whatever was appropriate at that occasion. But Vyasa has heard that, known it by his powers, yogic powers, and he has expanded it and elaborated it and put it in shlokas. Krishna may not have time to form shlokas at that time. He will talk in prose, not in poetry. So the poetification and all those things were done by Vyasa later. Similarly, Valmiki also. Valmiki was alive when Rama was there. Valmiki kept Sita in his ashram in Sitapur near Lucknow when Rama has abandoned Sita at the end. Valmiki was a live character in Ramayana. So Vyasa is a live character in Mahabharata. In fact, all these people are his progeny. All the Pandavas and Kauravas are nothing but progeny of Vyasa. He was in Badrinath. He was staying there. That's why it's called Badarayan. But he was called many times to Delhi, which is Hastinapur, and Meerut rather. Hastinapur is in Meerut. Delhi is Indraprasth. The old Purana Killa is the place where the Pandavas had their palace underground. If you dig today Purana Killa, you will find something. Now also they have dug, I went there, they found some things. So the Vyasa has recorded this entire thing, and he has conveyed in a very beautiful way. And Sanjay was able to see because he was given that power like television, only for one person. Not television means anybody can see, but Sanjay only one person can see, sitting with the blind king Dhritarashtra to whom he told. So this entire 17 chapters are covering different dimensions. I am giving separate lectures. My lectures are recorded here on each chapter separately. I know whole Gita by heart for the last 50-60 years. I have given hundreds of lectures. So now the 16th chapter is containing The 16th chapter is containing list of good qualities. Now, if you understand what is dharma, because the title of this lecture is Dharma Yoga, Dharma and Yoga. It has multiple meanings. One meaning is the yoga of dharma. If you say dharma is religion in Hindi, only in Hindi dharma means religion. In Sanskrit it does not mean religion. It means ethics, it means framework, it means so many things, but not religion. Only in Hindi it means a religion. If you take Hindu dharma, Buddha dharma, Islam dharma, Kaistava dharma and so many other dharmas, the yoga, the union of all these dharmas is dharma yoga. That is one meaning. And second meaning is dharma and yoga together. I claim if you take any religion,
It contains dharma and yoga. Can you show me any religion which will not have ethics in it? All these values. In fact, all religions are different mechanisms to enforce ethics in human life. In fact, even the court is nothing but that. Judiciary is nothing but a mechanism of enforcing ethics in human life. The police is a mechanism for enforcing ethics in human life. चोरी करे तो पुलिस पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा? जेल में क्यों जाएगा? ये यहाँ पे धर्म है, चोरी नहीं करने का, किसी को मारने का नहीं, झूठ नहीं बोलने का। इस तरह के जितने भी 25-30 जो है उसको दैवी संपत्ति बोल के 16 चैप्टर में दिया गया है और योग शास्त्र में ये दिए गए हैं यम नियम के रूप में। So yoga is again a common factor across all religions. If you take any religion, there are two types of religions. What are they? Theistic religions and atheistic religions. जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। अब ऐसा आपको शायद नहीं मालूम है, बौद्ध और जैन में भगवान को नहीं मानते। तो आप ये समझ लीजिए, वैदिक सनातन धर्म और बौद्ध जैन में इतना फर्क है, वो अवैदिक है, वो इसके खिलाफ है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी हिंदू माने गए हैं। आप देख लीजिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी ये सब भगवान को मानते हैं, आस्तिक रिलीजन्स है। तो और उनसे ज़्यादा ये गरीब है सनातन धर्म के, क्योंकि भगवान को मान रहे हैं। जो सनातन मानता है, वेद भगवान को मानता है, ये लोग नहीं मानते, ये वेद के विरुद्ध है, बौद्ध और जैन, इसलिए वो अलग हो गए। उनके दर्शन भी वेद विरुद्ध दर्शन है, अवैदिक दर्शन है। वो फिजिक्स मानते हैं, केमिस्ट्री मानते हैं, मैथमेटिक्स मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। लेकिन वेद तो भगवान को मानते हैं, पहले से शुरू से लेकर आखिरी तक भगवान की ही बात करती। तो अब कुरान भी वही बात करते हैं, बाइबल भी वही बात करते हैं। तो हमको कितना नजदीक में आपको देखना चाहिए, कितना मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन वो जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो लोग भी ये धर्म को मानते हैं, एथिक्स को मानते हैं, चोरी नहीं करने का, सच बोलने का, ये सब मानते हैं। तो अशोक सम्राट जो है, इसी को उन्होंने बड़े बड़े एडिक्ट्स में लगा के अपने उड़ीसा में, कश्मीर में, हर जगह में उनका बोर्ड्स अभी भी है, मैं भी देखा है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आप सारे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, वो धर्म का जो एथिक्स का जो लक्षण है। और बुद्धा वेंट टू श्रीलंका, आई ऑल्सो वेंट टू श्रीलंका, ही वेंट 7 times they say, and he went and propagated dharma chakra pravartana there in Sri Lanka. So whether you accept God or not, I'm taking a broad picture. See, we have 2 types of religions, the theistic religions and the atheistic religions. Buddhism, Jainism and maybe a few others, they don't believe in God, but they are religions. And Hinduism or Sanatan Dharma and Islam and Christianity and Judaism and Baha'ism and various others are having belief in God. So both will accept dharma. If you want to have a common platform across all religions, then you should have only that which is most common. हमारे पास अरिथमेटिक में LCM बोल के रहता था, लीस्ट कॉमन। तो फैक्टर सबसे कॉमन जो है क्या है, चोरी नहीं करने का ले लीजिए, सब लोग मानते हैं चोरी नहीं करने का। और ये कम्युनिस्ट लोग जो है वो भी नास्तिक लोग हैं, ऑल कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, CPI, CPM, CPI, ML, नक्सलाइट, जनशक्ति, सब लोग जो है दे डोंट एक्सेप्ट गॉड। लेकिन वो भी ये मानना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकता कि चोरी करना अच्छा है, डाकू करना अच्छा है, मारना लोगों को मारना अच्छा है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि कोर्ट भी वही बोलेगा, पुलिस भी वही बोलेगा। तो और हमारे जो नास्तिक दूसरे भी जो लोग हैं, DK द्रविड़ कजगम तमिलनाडु में, जो रीवी रामस्वामी नायकर, मैं उनसे भी मिला था एक बार, तो वो एकदम नास्तिक है। वो भगवान को आप नहीं जानते हैं। हमारे कांची में जो शंकराचार्य का मठ है, उसके सामने उन्होंने बहुत बड़ा एक खंबा लगाया, वहाँ पे लिखा भगवान नहीं है, भगवान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 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 नहीं है। और जो भगवान के बारे में बोलता है वो चोर है, जो भगवान को ये करता है वो डाकू है, ये है, इस तरह उन्होंने बिल्कुल सामने हमारे कंची शंकराचार्य मठ के सामने उन्होंने लगा के रख दिया। वो ऐसे है, अभी मैं भी देखा उसको। तो उनके जो शिष्य है ये DMK वाले हैं, ये जो DMK जो पार्टी है वो सब नास्तिक है,
करुणानिधि, ये सब जो लोग हैं, इतना नास्तिक है कि वो नास्तिक है लेकिन उसका बीवी भी आस्तिक होगी, वो मंदिर जाएगी वगैरह करेगी, वो खुद जो है नास्तिक रहेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनका जो मैनिफेस्टो है, गॉड नहीं, इज नॉट देयर बोल के लिखना पड़ता उनके पास। सो उनके जो भाई बहन जो AIDM के लोग हैं वो तो फिर भगवान को मानते हैं, ये जयललिता वगैरह के जो, तो ये DKDM के ये भी नास्तिक है, और कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, और ये रशिया में जो लोग रहते हैं, ये चाइना में जो लोग रहते हैं, ये सब ये भगवान को नहीं मानते। लेकिन वो लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि एथिक्स, धर्म को मानना पड़ेगा। यदि आप बोलेंगे चोरी करो, डाकू मारो, सबको लूटो, तो वो खुद लूट जाएंगे, वो खुद मर जाएंगे पहले, तो उसलिए कोई नहीं बोलेगा। सो धर्म इज द यूनिवर्सल एथिकल फ्रेमवर्क विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, बोथ थीस्ट एंड एथिस्ट, एंड ओनली ए चोर विल नॉट एग्री चोरी नहीं करने का, बट ही हिमसेल्फ में एग्री फॉर हिज ओन हाउस। यदि कोई चोर वाकई उसके घर में चोरी किया तो वो बोलेगा नहीं चोरी नहीं करने का, लेकिन खुद करेगा। तो ethics is such a thing that everybody accepts, and yoga, coming to yoga, normally yoga means people think only yoga asanas, pranayam, ये सब है, that is hatha yoga, but then we have Raj Yoga which is dhyan, dharana, samadhi, then we have jnana yoga, then we have bhakti yoga. So in Bhagavad Gita 17 chapters, first chapter is only complaining of Arjun, the remaining 17 chapters are different yogas. One is bhakti yoga, 12th chapter is bhakti yoga, 3rd chapter is karma yoga, 4th chapter is jnana yoga, like this all different yogas are there. So if you take generic yoga, all covering all these 18 chapters, that is there in all religions, even though they are theistic or theistic, both. Because in theistic religion which accept God, bhakti is there. Without bhakti, devotion, how can you pray to God, you tell me? If I don't have any devotion to God, how can you say you are a Muslim or you are a Christian or you are a... So bhakti is compulsory. So bhakti yoga is there in all religions who believe in God. And not about religions which don't believe in God. Like you have Buddhism and Jainism. They have bhakti for Buddha, or bhakti for their Jinnah, you know, the Mahavir, all these gurus. Guru bhakti is there. So they do a lot of yoga. If you see all the pictures of Buddha or Mahavir, they are all in Padmasana. They are in pranayam, samadhi, sab yoga hai, yoga hai. Buddha himself practiced very advanced yoga. I have read what all pranayam he has done, what all dhyan, samadhi he has done. So it is pure yoga, nothing else but yoga. The entire Buddhist way of life is just yoga, and Jain also is yoga. So, and yoga is the origin in Vedas and the Gita, and 18 chapters are all 18 different yogas, and therefore yoga is universal. So dharma and yoga are universal. That's why I put together dharma yoga. So dharma yoga is universal. Even for atheists, communists, and Buddhists, Jains, anybody, this should be accepted. So, but the other important point is the self. जो आत्मा जो बोलते हैं, सोल, वो लोग वो मानते हैं, सेल्फ को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो क्या फर्क है दोनों में, अब बताइए? आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? हमारे पास अद्वैत सिद्धांत है जो कहता है आत्मा और परमात्मा एक ही, आत्मा नहीं है, केवल परमात्मा है। जो सोल आप कहते हैं, मैं जो बोल रहे हैं आप क्या भगवान से अलग है? यदि आप भगवान से अलग है तो आप भी भगवान समान होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए आप भी। तो हमारे पास अद्वैत सिद्धांत में शंकराचार्य ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। असल में जीवात्मा जो है वो एक झूठ है, एक माया की वजह से वो समझता है मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग। असल में वो अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, वो परमात्मा है। केवल भगवान सच है। पूरा अद्वैत का एक समरी स्टेटमेंट है, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म एवं अपरा। ये जो जगत जो दिख रहा है, दुनिया, एक झूठ है। क्या मानते हैं उसको झूठ या सच? यदि आप मानेंगे सच है, सबको एक ही तरह दिखना पड़ेगा। अब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं 50-60 लोग, सबको एक ही दुनिया दिख रहा है, अलग अलग दुनिया दिख रही है, अलग अलग दिख रहा है। ये बिल्ली को अलग दिखेगा, कुत्ते को अलग दिखेगा, चींटी को अलग दिखेगा। दुनिया जो है क्या है बोले तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलेंगे। तो ये एक माया है, एक झूठ है, लेकिन सच जैसा दिखता है। माया और झूठ में फर्क क्या है? झूठ तो झूठ ही है, लेकिन माया सच जैसा दिखता है। जैसा कोई हिप्नोटिज्म कर दिया, कोई आपको ये कर दिया, आप फंस गए उसमें। तो
जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम। सच फिर क्या है? सच तो केवल भगवान है, ब्रह्म, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वो अकेला सच है, बाकी सब झूठ है। सच जैसा दिखता है, पैसा सच जैसा दिखता है, क्या पैसा सच है? प्यार सच है? या जायदाद सच है? प्रॉपर्टी, पोजीशन, मैं बहुत बड़ा पोजीशन किया हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा जो पोजीशन मैं उसको किया, डायरेक्टर जनरल। मेरे नीचे 25,000 लोग थे, मेरा एक सिग्नेचर का हजारों, मतलब पूरे हमारे ऑफिस में 1000 करोड़ का खर्च होता था। आज मेरा सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है, मैं रिटायर हो गया। क्या सच है वो? ये सारे जितने भी है, देयर आर रिलेटिव ट्रूथ्स, देयर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं अभी थोड़ा सा आपको आत्मविवेचन करवाऊंगा, मैं कौन हूं? आप अपने आप को पूछ लीजिए, मैं कौन हूं? यहां पे कोई है बोलेगा मैं नहीं हूं? आज तक दुनिया में कोई बोल सकता मैं नहीं हूं? यदि बोलेगा तो वो बोल रहा कौन है? तो मैं हूं बोल के तो मानना पड़ेगा। मैं हूं तो सच है, लेकिन मैं कौन हूं? अब मैं फलाना फलाना CSR प्रभु, CSR प्रभु तो केवल नाम है, इसी नाम से और कोई भी हो सकता है। मैं नाम तो नहीं हूं ना, नाम तो केवल कुछ अक्षरों का, अल्फाबेट्स का है। मैं कौन हूँ फिर? मैं बोलूँगा मेरा बाप का बेटा हूँ, बाप ठीक है, लेकिन बाप तो मर गया, अभी मैं कौन हूँ? और मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बहन हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का वाइफ हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ ना मैं। जैसा मैं कार ड्राइव करके आया, पुलिस वाला देखेगा तो मेरे को समझेगा ड्राइवर है, ये नहीं समझेगा कि ये CSR प्रभु है, ये एक लेक्चर दे रहा है, ये गीता जानता है, ये ड्राइवर, जैसे कुछ नहीं, केवल ड्राइवर है बस। मैं ड्राइवर ही था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ये पकड़े तो मैं बताऊंगा मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं ड्राइवर के अलावा बहुत कुछ हूँ। तो मैं कौन हूँ? आप यहाँ पे कोई असली जवाब दे सके, मुझे मनवा सके, तो मैं उनको बहुत बड़ा प्राइज दूंगा। आज तक मैं हजारों लोगों को पूछा है, सब लोग आखिर में बोलते हैं मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, इतना ही बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। हाँ, अल्लाह का बंदा आप बोल रहे हैं, इसलिए हाँ। तो यदि इतने सारे छोटे छोटे आत्माएं हैं, सब एक परमात्मा का अंश होना चाहिए, क्योंकि सच तो एक ही है, वो परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। तो उसका जो छोटे छोटे भाग है, पार्ट्स, ये सारे जीवात्माएं हैं, और ये जब वो उसमें मिल जाते हैं वो एक हो जाते हैं। असल में एक ही है, लेकिन माया की वजह से अलग ऐसा महसूस हो रहा है। सो इसलिए अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस तरह का अनेक सिद्धांत है। पहला अलग है, बाद में मिल जाएंगे, पहले से मिली वो है लेकिन माया से अलग समझ रहे हैं, या हमेशा अलग रहेंगे लेकिन करीब आ जाएंगे और मिल जाएंगे। इस तरह का मोक्ष का मतलब क्या है? मिल जाने के ही मैंने हो गया, मिल जाने का ही अर्थ मोक्ष है। यदि आप हमेशा अलग रहेंगे भगवान से तो कोई फायदा नहीं है। जब तक आप भगवान को नहीं पहुंचते तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आप इस जीव स्थिति में रहेंगे और कर्म और नरक, स्वर्ग और नरक भुगते रहेंगे। सो मोक्ष कभी होगा जब आप मिल जाएंगे भगवान से। तो ये सब पॉसिबल है योग प्रोसेस से, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो धर्म योग इज द कॉमन फ्रेमवर्क, and we are writing this book where we are showing more than 100 evidences of the common factors between different scriptures, showing the common principles of acceptance. I think we'll stop here. हाँ, तो ज़्यादा से लोग इतना ही बताएंगे मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, तो वो अच्छा जवाब है, क्योंकि इट इज़ एस्केपिज्म। So, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मैं हूँ जो सत्य है और चित्त है। मैं सच्चिदानंद, मतलब मैं भगवान ही हूँ, मतलब मैं अल्लाह का बंदा ही नहीं, अल्लाह के एक अंश हूँ, अल्लाह से अलग नहीं हूँ मैं। यदि अलग हो गया तो विपरीत हो गया। तो अल्लाह के एक भाग मानना पड़ेगा। और जो मैं भागों की जो बात करेंगे, जैसे मैं अब देखिए इस कमरे में ये आकाश जो है, स्पेस, ये स्पेस जो है ना है, और अपने ट्रम्प जी के कमरे में एक स्पेस है व्हाइट हाउस में, और दूसरे जगह लंदन में उनके कमरे में एक स्पेस है। जितने भी स्पेसेस हैं ये सब अलग है, एक ही है? बताइए, स्पेस अलग अलग दिख रहे हैं,
मेरे कमरे में स्पेस, आपके कमरे में स्पेस, ट्रंक के कमरे में स्पेस, इतने सारे स्पेस जो है अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन स्पेस तो एक ही होना चाहिए बाय लॉजिक, है ही नहीं। इसी तरह पानी, यहाँ का पानी, वहाँ का पानी, दुनिया के गंगोत्री का पानी, हुसैन सागर का पानी, कंटेमिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन पानी तो एक होना चाहिए। हवा भी एक होना चाहिए, यहाँ का हवा, वहाँ का हवा, वहाँ का हवा। तो जितने भी, इसी तरह ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, जितने भी जीवात्माएं हैं, ये सब एक ही होना चाहिए, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है। क्वेश्चंस So, as all of you have heard, okay, some of the enlightenment that Dr. Sridhar Prabhu sir has shared with us. Okay, so he is working since many years on this common framework, bringing out the similarities between the different divine principles